So, good afternoon, everyone. I hope I'm audible to everyone now. So, welcome everyone to the 22nd webinar of our esteemed 24 in 2024, the Changemakers of India series. My name is Tanisha, and it's an absolute pleasure to host today's enlightening session. At Whiteboard Foundation, we are dedicated to empowering young minds by bridging the gap between academic learning and the corporate world. Through this exclusive series, we are thrilled to bring you closer to some of India's most inspiring changemakers whose journeys and insights are helping shape the future of countless aspiring professionals. To stay connected with us in this journey, I'm dropping the link of our WhatsApp community in the chat box. You can join that, and also you can subscribe to our YouTube channel wherein you will always get to learn something new. Let me just quickly drop the. Yes, you are. Okay. So shall we start? So could you hear me before? Yes. Actually there are some issue with the noise, but it's okay now. Yeah. That's fine. That's fine. All right. So yeah, we can start with the session now. Yeah. So just wanted to know, I mean, who the our audience is. Are they students or startups? Mr. Mitresh, your voice is cracking actually. Okay. So just wanted to know, I mean, who the audience is. Are they students or who have already started up? Yeah. Uh, it is a mixed crowd. So yeah, we do Okay. have the student crowd also and some professionals also. Okay. Yeah. Okay. So Tanisha, thank you first of all, for having me here. So yeah. So I would just like to, share my journey with all of you. How I started First Bird and how we went to the Shark Tank and how I scaled a business from home with a very small amount, say 1 to 1.5 lakhs rupees, and we made more than crores in revenue without taking debt or I mean investment in the earlier stages. So my journey started. My background lies in digital marketing. So I used to work in Delhi in a digital marketing company, which was a Korean firm. So back in 2013, I completed my graduation, and this was my first job. So I used to handle LG India and other clients globally. I used to lead a global monitoring team. So what happened, everything was going good. I was very content in my job. So one fine day when I went to office, we came to know that they are closing the Indian office. So this was a shock for all of us, and we lost our job. So we were given a compensation for 2 to 3 months. So this is how I came into business. So I thought कि अब मुझे अब तो जॉब नहीं करना, अब मैं बिजनेस ही करूंगा. The reason was when I saw I mean my colleagues who were very elder to me, and I thought कि यार मतलब इस एज में इनकी जॉब गई है, तो I was very young that time. I could take risks. So that was my first step into entrepreneurial journey. So how I started, जब ये कंपनी जा रही थी इंडिया से, I took some furniture from them in second hand prices, laptops and all. And in Delhi only I started a digital marketing agency. Because this company used to do same for big clients. हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने local restaurants को client बनाना शुरू किया, and we used to handle their social media pages, content marketing and all. तो दिल्ली में कनॉट प्लेस में परिक्रमा was my first client. And इसके पहले मैंने कभी सेल किया नहीं था. I was mainly a operation guy. मतलब सेल्स आई हैड वेरी जीरो नॉलेज, एंड आई यूज्ड टू फील दैट ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, मतलब सेल्स की स्किल्स आनी चाहिए. तो ऑल्सो बिजनेस चेंज मी, आई मीन प्रायर टू दिस आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. मतलब मुझे नहीं लगता मैं किसी क्लाइंट के लिए कभी 2-3 घंटे वेट भी कहीं पे करूँ. तो व्हेन आई स्टार्टेड पिचिंग दिस एजेंसी टू दिस क्लाइंट्स, 5-5 घंटे हमें वेटिंग में बैठना होता था. तो आई थिंक दिस ओवरऑल चेंज माई परसेप्शन. बट दिस वॉज माई फर्स्ट बिजनेस. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत ही एग्रेसिवली टीम हायरिंग की थी, ऑफिस लिया रेंट पे. तो 1.5-2 साल बाद क्या हुआ, ये रियलाइज हुआ कि वी आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स. तो यहाँ से एक थोड़ा लर्निंग लेके मैंने वायरल वेब को फिर क्विट किया 2016-17 में. और रीजन ये भी था कि आई ऑलरेडी हैड डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स. आई वांटेड टू सेल सम फिजिकल प्रोडक्ट्स. मेरा मत था कि मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आऊँ, ऑनलाइन सेल करूँ, लेकिन ये नहीं पता था करना क्या है. तो मैंने यहाँ पे वायरल वेब छोड़ा. अपने जो मेरे कलीग्स थे, दो, उनको बोला कि आई वांट टू क्विट. मैंने क्विट किया. लकीली ऑफिस में था मैं, आई सॉ एड एक्सेल आ रही जमशेदपुर में कोई कोर्स था. बेसिकली इट वाज एंटरप्रेन्योरशिप मीट. मैं वहाँ पे गया. वहाँ पे मैंने बहुत सारे एनजीओस को देखे जो रूरल एरियाज में काम करते हैं, और बहुत ही अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स थे उनके पास. तो इनिशियली आइडिया केम कि मैं इसको रीब्रांड करूंगा, इसको मैं ऑनलाइन सेल करूंगा. लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं था कि मुझे सेल करना क्या है. आई वांट टू गो इनटू स्किन केयर और क्लोथिंग, या मुझे
फूड प्रोडक्ट्स में आना, ये क्लैरिटी तो नहीं था उस वक्त. तो दिस इज हाउ फर्स्ट बट केम इनटू पिक्चर. तो अराउंड उसके 5-6 महीने बाद भी मैंने कुछ भी नहीं किया. आई वाज टोटली जॉबलेस, और कोई जॉब भी नहीं था, बिजनेस भी नहीं कर रहा था मैं. तो अराउंड 2017 इनिशियली मैं आई केम बैक टू दिल्ली. तो मैंने सोचा कि आई स्टार्ट विथ क्लोथिंग सेगमेंट. तो मैं जितने भी मार्केट्स थे मैंने सारा एक्सप्लोर किया. आई गॉट डाउन द सैंपल्स. लेकिन समझ में आया कि आई थिंक दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी. मतलब मेरे अंदर वो नॉलेज ही नहीं है क्लोथिंग का. मुझे मतलब फैब्रिक का भी ठीक से आइडिया नहीं था. बट दैट टाइम वाज आई वाज मोर इनटू फिटनेस. मैं ग्रीन टी बहुत कंज्यूम करता था उस वक्त. तो यहाँ से क्या हुआ कि आई केम बैक टू देहरादून. एंड देहरादून में मेरे कुछ लोकल कनेक्शन पहले भी थे, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन देहरादून से हुई थी. तो वहाँ पे आई वेंट टू किसान भवन. इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे दे एक्चुअली वर्क विद द फार्मर्स कम्युनिटी, एंड दे प्रमोट इट आई मीन इन अ वेरी गुड स्केल. तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे फार्मर्स की लिस्ट मिली एंड व्हाट दे ग्रो. तो अगले 3 से 4 महीने आई ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन उत्तराखंड. मतलब मैं काफ़ी जगह गया हूँ वहाँ पे. तो मुझे वहाँ पे ये देखा कि तुलसी की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. इट वॉज काइंड ऑफ अ डेड स्टॉक. So this is how my first product came into picture, which was Tulsi Green Tea. ये मेरा पहला SKU जो मुझे आया कि मुझे ये करना चाहिए. रीज़न क्या था कि उस वक्त मैं ऑर्गेनिक इंडिया का भी ग्रीन टी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, तुलसी ग्रीन टी. और जब मैंने अपने रिसर्च भी किया ऑनलाइन, मैंने कुछ कीवर्ड्स वगैरह देखे, तो आई फाउंड दैट यहाँ पे सर्च वॉल्यूम अच्छा है. यहाँ पे मतलब इट्स अ गुड प्रोडक्ट जो बिक सकता है. कमर्शियल प्रोडक्ट भी था, लेकिन ये नहीं पता था पैक कैसे होगा, करना क्या है. तो इनिशियली ये पता था कि चलो ये हो गया. तो यहाँ पे आई टुक हेल्प फ्रॉम माय वाइफ्स फैमिली. दे आर इनटू टी बिजनेस ओनली फ्रॉम डिकेड्स इन कोलकाता. तो आई केम इन टच विद द टी टेस्टर. हम लोगों ने 3 से 4 फॉर्मुलेशन बनाए टी के. तो दिस इज हाउ तुलसी ग्रीन टी केम इनटू पिक्चर. लेकिन अब यहाँ पे पैकेजिंग का बहुत मेजर इशू था, क्योंकि बीइंग ए स्टार्टअप सबसे बड़ा इशू जो आता है पैकेजिंग में ही आता है. व्हेन यू गो टू दिस वेंडर्स ना, दे आस्क फॉर अ ह्यूज एमओक्यू कि आप 10,000 बॉक्सेस लो, 5,000 बॉक्सेस लो. तो वहाँ पे आपका कैपिटल, क्योंकि आप ऑलरेडी कैपिटल होता नहीं है इतना इनिशियल लेवल पे. तो यहाँ पे इनिशियली आई रिलाइड ऑन थर्ड पार्टी पैकेजिंग. मैंने थर्ड पार्टी पैकेजिंग ही किया शुरू में, और वी केम अप विद 500 बॉक्सेस. माय फर्स्ट लॉट साइज वाज 500 बॉक्सेस. सो दिस इज हाउ तुलसी ग्रीन टी केम इनटू पिक्चर. लेकिन टी लॉन्च करने से पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक सर्वे भी किया था, जहाँ पे हम लोगों ने ये पूछा था लोगों से, आप हर्बल टी पीते क्यों. तो हमें 3 रीजंस मिले थे बेसिकली, जो थे फॉर वेट लॉस, फॉर इम्यूनिटी, एंड फॉर रिफ्रेशमेंट. So we came up with 3 teas. Tulsi green tea was for immunity, slim tea we made for weight loss, and third was peppermint lemongrass का blend था. It was for refreshment. So this was my first 3 SKUs, and almost a month. I mean, we listed on Amazon. और I don't think पहले महीने कोई ऑर्डर भी आया था, 1 या 2 ऑर्डर आए होंगे. और सब पूछते भी थे यार कितना भाई, ये पता नहीं है बिकेगा कि नहीं बिकेगा. बट फाइनली वन फाइन डे आई मीन अल्टरनेट डेज पे ऑर्डर आने लगे, फिर डेली आने लगे. तो वो प्राइड भी एक था, चलो ठीक है किसी के घर में बट फर्स्ट बर्ड का एक टी बॉक्स जा रहा है. तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड. एंड फर्स्ट ईयर वी डिड अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 23 lakhs. एंड अगले साल हम लोगों ने फिर और भी प्रोडक्ट्स ऐड किए. तो माय फर्स्ट सक्सेस केम विद हनी, ऑर्गेनिक हनी, व्हिच वी अगेन प्रोक्योर फ्रॉम उत्तराखंड. एंड दैट टाइम वी यूज्ड टू प्राइस अराउंड 390 हाफ अ केजी. और उस वक्त वो अमेजोन पे चल गया, और हमारा ऑलमोस्ट 10 to 15 टॉप रैंक में आता था हनी कैटेगरी में. तो हमारा जो मंथली रेवेन्यू है वो 5-6 लाख हो गया. तो नेक्स्ट ईयर हमने फिर डबल किया उसको, 23 का 46 किया. अगले साल हम लोगों ने 96 किया. तो ये समय ऐसा था कि कोविड भी पिक्चर में आ गया था. तो कोविड में इनिशियली आई मीन इट वाज अ बिग लॉस, क्योंकि 3-4 महीने सबके बिजनेस ही बंद थे. तो इट वाज नथिंग टू ब्लेम, क्योंकि सबका बंद है, हमारा भी बंद है. लेकिन जब वो रिवैम्प हुआ तो दे वाज पैनिक बाइंग, क्योंकि वी वर इनटू हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी. और यहाँ पे हम लोगों ने पंच तुलसी ड्रॉप भी हम लोग लेके आए थे. वी केम अप विद लाकाडोंग टर्मरिक, व्हिच इज अ वेरी प्रीमियम टर्मरिक फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मेघालय. तो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू फिर से डबल हुआ. देन केम कोविड फेज 2. तो कोविड फेज 2 वाज समथिंग, वहाँ पे हम लोगों ने हिट लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1.5 CR हो गया था. लेकिन क्या हुआ कि फेज 2 में आई थिंक इट वाज मोर एंड मोर डेडली. मेरे पूरे ऑफिस में सबको कोविड हो गया, मुझे भी हो गया था. ऑपरेशंस 2 से 3 महीने बंद थे. और एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर हम लोग लेके आए साउथ अफ्रीका से, स्किन केयर का 23 लाख का. वो हमने कभी डिस्पैच ही नहीं किया, डिस्पैच नहीं कर पाए. तो इट वाज मतलब मेजरली लॉस दैट ईयर. तो विद दैट आई हैड टू एक्चुअली क्लोज माय ऑफिस, एंड आई हैव टू मेड टू लीन स्ट्रक्चर. मुझे अपने फिर से लीन स्ट्रक्चर में आना पड़ा.
आई शिफ्टेड टू माई होम टाउन। मैंने वहाँ पे फिर से अपने घर से फिर से दोबारा रीबिल्ड किया फर्स्ट बट को। लकीली शार्क टैंक केम इनटू पिक्चर। सीजन 1 कब आया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। जब सीजन 2 आया तो आई थॉट कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए था। मतलब ये मेरे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो अभी प्रॉब्लम हुई है सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि आप जानते हो जो भी शार्क टैंक में जाता है एक अच्छा विजिबिलिटी और अच्छा सेल्स आता है। तो आई अप्लाइड फॉर सीजन 2। तो सीजन 2 में आप जब टीवी पे आप फाइनल शूट पे देखते हो ना, तो उसके पहले 3-4 राउंड्स और होते हैं, और हर राउंड में एलिमिनेशंस होते हैं, राइट। तो सीजन 2 में आई क्लियर ऑलमोस्ट इनिशियल सारे राउंड्स, और ऑफलाइन ऑडिशन भी क्लियर हो गया था। हम लोग टॉप 500 या 600 में थे, लेकिन शूट के पहले हम लोग बाहर हो गए थे। और ये सारे प्रोसेस को ऑलमोस्ट 8-9 महीने लग जाते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वहाँ पे आई हैड टू डिसाइड फ्यू थिंग्स। मैंने देखा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम थी कि एक तो ब्रांडिंग में, उस वक्त क्या था कि हमारा ब्रांडिंग में ना यूनिफॉर्मिटी नहीं था। हर कैटेगरी में अलग था। पिकल का अलग है, हनी का अलग है, ऐसा लग रहा है 4 अलग अलग ब्रांड थे। तो यहाँ पे आई 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 चेंज द ब्रांडिंग, लोगो चेंज किया, ब्रांडिंग चेंज किया। वी एडेड 2 SKUs, homemade mango pickle chai masala, which initially was started how my mom used to make it. उसको हम लोगों ने बल्क क्वांटिटी में किया, अमेजोन पे लिस्ट किया। तो व्हाट आई डिड, आई यूज माय मॉम्स पिक्चर इन दिस टू SKUs, which actually I mean did well for us on Shark Tank also और अमेजोन पे भी। तो यहाँ से वो स्टोरी भी बिल्ड हुआ कि चलो मॉम और सन का एक स्टार्टअप है, और आई थिंक ये भी चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सीजन 3 में जब वी अप्लाइड अगेन, तो माय मॉम आल्सो वेंट विद मी। आई मीन यू ऑल हैव सीन, फाइनली वी गॉट अ डील फ्रॉम रितेश। रेवेन्यू भी हम लोगों ने और अच्छा किया पहले से। एसकेयूज थोड़े हटाए, ऐड तो नहीं किए, क्योंकि हमारे पास 30-40 एसकेयू हो गए थे, तो हम लोगों ने इसको नैरो किया। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है जब आप स्टार्ट करते हो, आपको इन्वेंट्री भी सबका एक मैनेज करना होता है। और मतलब आई ऑल्सो रियलाइज कि अब थोड़ा 15-20 एसकेयू करते हैं जो उसको नैरो करके, एंड देन वी स्केल इट। So this is how first but came into picture with a very small investment. I started with 1.5 lakhs or something, और आई थिंक आज से 1 साल पहले तक तो कोई लोन भी नहीं था हमारे ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही स्लोली भी स्केल किया है। ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत फास्ट स्केल किया है, स्लोली किया है, लेकिन प्रॉफिटेबली किया है। वी एंश्योर्ड कि हर महीने हम प्रॉफिट हो, हम उसको घर लेके जाएँ। और एक मिथ होता है, लोग सोचते हैं कि ऐसे स्टार्टअप्स के लिए ना बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है, बहुत बड़े फैक्ट्री चाहिए, यूनिट चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने जिस जगह से शुरू किया है, अगर आपके पास इंटरनेट है, आप घर में बैठे हो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आई थिंक स्किन केयर तो और भी ईज़ी है, क्योंकि वो सारा थर्ड पार्टी ही होता है। लेकिन टू स्टार्ट आई थिंक समथिंग आज के टाइम में इट्स मोर ईज़ी, मोर कन्वीनिएंट। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो रिसर्च में। बहुत सारे एग्रीगेटर्स हैं शिपिंग में। तो आई थिंक सिनेरियो हैज चेंज्ड, एनीवन कैन स्टार्ट एनीथिंग। और कंज्यूमर स्पेस में या D2C स्पेस में आई थिंक इट्स द राइट टाइम, क्योंकि अभी आप देखो अभी क्विक कॉमर्स भी आ रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। पहले लोगों को ऐसा होता था कि प्रोडक्ट हमें 3-4 दिन में मिले, फिर सेम डे हुआ अमेज़न प्राइम से। अब लोग 10 मिनट देखते हैं कि 10 मिनट में आना चाहिए ब्लिंकिट से, ज़ेप्टो से। तो बीइंग ए ब्रांड यहाँ पे हमारे लिए भी लर्निंग है। वी आल्सो हैव टू चेंज आवर स्ट्रैटेजीज़। अब हमें भी ज़ेप्टो पे आना है, ब्लिंकिट पे आना है, या फिर मेट्रो सिटीज़ में वो डिलीवरीज़ देनी है। तो these things keep changing, but the point is it's very easy to start nowadays, जो आई थिंक आज से 7-8 साल पहले नहीं था। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिशन आज के टाइम में और ज़्यादा है, लेकिन उतने ज़्यादा ही टूल्स अवेलेबल है। So if you have any questions, I'll be happy to help if anyone can ask anything. Yeah, anyone have started and they need to ask anything. I believe as as it was mentioned, the last 15 minutes will be the questions. All right. If anybody has any questions, you can drop them right now. That's fine. We'll have the Q&A right now. By then, Mr. Mutresh, if you want to continue, you can. I think no questions. We don't have questions right now. Audience, If if you you have any have any questions, you can can ask. drop them. Yeah, if you want to ask anything, you can ask. Like personally, I don't have any questions. It was really inspiring to, at least hear But it should like, be more interactive. I mean, one side is not good. It should be two ways. yeah.
Yeah, no, we understand. Yeah, no, like, see, personally, it was really like, okay, we have one question. Okay. See, After the that, I'll skills just are tell you. the very first thing, I mean, we have asked, what are the skill sets to start a business? The very first thing is you need to take that first step. बहुत बार क्या होता है कि लोग बहुत सारा R&D करते हैं, उनको प्रोडक्ट क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, क्या लॉन्च करना है, सब कुछ, और वो लॉन्च नहीं करते, वो टाइम 5-6 महीने अपना बर्बाद करते हैं कुछ नहीं है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू स्टार्ट, बिकॉज व्हेन यू टेक द फर्स्ट स्टेप, बिजनेस इज समथिंग इट टीचेस यू। आप रास्ते में काफी कुछ सीख जाते हो। तो वेरी फर्स्ट थिंग आप वो एक इनिशिएटिव ले लो, आप स्टार्ट करो। आई थिंक मेजर स्किल सेट तो आई थिंक रिस्क फैक्टर है, वो लेना आना चाहिए बीइंग अ एंटरप्रेन्योर या फिर बीइंग अ बिजनेस। आई थिंक मनी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। जो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, ऐसा नहीं है। आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो, और ऑनलाइन समथिंग जो D2C स्पेस है या फिर मार्केट प्लेस है, ये आप 1 लाख 1.5 लाख से भी शुरू कर सकते हो अपने घर से। All right. I believe your question was answered, Ms. Ankita. If you have any more questions, or by then I was saying something right. Yeah, No so worries. it was really, yeah, it was good to hear about this because, like, I've also initially once thought about, like, starting a business. But yeah, as I could Okay. comprehend, I was really scared. I was really scared for that. Like, I was scared to start. So, like, after all this, like, it just seems like, some pathway has created, like, you need to take that first step. That's Correct. what that's what I believe. I was really scared to, like, just, but yeah, See, after scale, hearing I all mean, this. I tell you what happened when I was in job. Mhm. जब आप जॉब में हो तो आपको एक हैबिट होती है मंथली सैलरी की। मंथ एंड होता है, फर्स्ट वीक आता है, अकाउंट में आप देखते हैं अच्छा पैसे आ गए। मेरे साथ यही था। आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, नो सेविंग नथिंग। वो आया, वीकेंड पे गए, पैसे खत्म। तो जब मेरी जॉब गई ना, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने 2 साल किया क्या है। मतलब मैंने कोई सेविंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और एक फियर भी होता था कि जॉब चली जाएगी तो मैं करूंगा क्या उस टाइम में, क्योंकि जब आप कॉलेज से निकलते हो, फ्रेश होते हो, एक एक्सपेक्टेशंस होता है फैमिली का भी, आपका भी खुद से होता है। तो ये फियर था कि मैं करूंगा क्या। मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं, आई मीन, आई डू दिस। लेकिन आई थिंक अगर मैं अपना पीछे का रास्ता देखूं तो एवरीथिंग इज फिट। मतलब मेरी वो कंपनी में जॉब नहीं जाती, मैं वायरल वेब शुरू नहीं करता, वो वायरल वेब बंद नहीं करता, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ड पे नहीं आता। तो आई थिंक एवरीथिंग इज लिंक्ड। कहीं ना कहीं वो स्किल सेट काम आता ही है। राइट। Yeah, it was ठीक है, test time. फियर इज ऑलवेज देयर, बट नाउ यू नो, अब हम लोग ऐसे स्टेज में हैं। आई थिंक आज से 3 साल या 4 साल पहले आई वाज मोर ऑफ पैनिक मोड में कि कुछ भी हो जाए बिजनेस में भी। अभी आई एम मोर काम। अभी कुछ बम भी फूट जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई सीन, मुझे लगता है कि उससे बुरा भी नहीं आ सकता। तो फियर यू That was good. That was really good. All right. So we have another question from chat box. So it's a question from like Shubham. Shubham is yeah. If asking. you want me to, I can read that out for you. If Yes, that's all yes, right. yes, yes, All yes. right. So yeah, we have the question from Shubham. It's hello Mitresha. How can one be sure about his business idea? I mean, will it work or not? What are the parameters to decide that? द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग इज शुभम, आपको ना एक पहले से, जैसे हम लोगों ने भी किया था, मैंने टीज लॉन्च, मैं तो इस बिजनेस में था ही नहीं। मेरे पापा का भी ढाबा जो आप बोल सकते हो वैसा था। आई वाज नॉट इनटू पैकिंग पैक्ड फूड, क्योंकि दिस बोथ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। तो जब हम लोगों ने टी शुरू करने का मेरा प्लान बनाया, ऑल्दो आई हैड सम ऑनलाइन स्किल, लेकिन वो और यहाँ फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने में डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो हम लोगों ने बहुत सारे सैंपल्स बनाए थे, अराउंड 1000 के छोटे छोटे 2 ग्राम्स के टीज के पाउचेस। और हम लोगों ने कम से कम अपने कनेक्शन में 1000 1500 लोगों को वो शिप किया था। उससे उनसे पहले फीडबैक भी लिया था कि आप बताओ कि इसमें से बेस्ट क्या है क्या नहीं है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हमने कुछ कॉम्पिटिटर का भी दिया था, अपना भी दिया था। ठीक है। और जब वहां से हमें एक पॉजिटिव फीडबैक आया, तो एक तो हम कॉन्फिडेंट थे अपने सोर्सिंग पे, क्योंकि जहां से मैंने देखा आई वॉज वेरी श्योर ये डिफरेंट है, ये वो कमर्शियल तुलसी ग्रीन टी नहीं है जो मार्केट में देख रहे हैं। यहाँ पे लीव्स का फर्क है, प्रीमियम क्वालिटी लीव्स है ये, जो एक्सपोर्ट होता है दोनों में। क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आओगे आपको ये पता लगेगा, इंडिया में मैक्सिमम जो गुड क्वालिटी है वो एक्सपोर्ट होता है। टी में भी, टर्मरिक में भी 3-4 वेरिएंट्स होते हैं। टी में जैसे फर्स्ट फ्लश होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट फ्लश इज द फर्स्ट कल्टीवेशन, जहाँ पे टी लीफ का प्राइस बहुत ही हाई होता है, अबाउट 4000 रुपीज अ केजी। सेकंड फ्लश इज 2000 रुपीज अ केजी। थर्ड में आओगे तो 1000 रुपए किलो। जो लास्ट होता है तो 400-500 रुपए किलो। तो आप जो खा रहे हो ये डस्ट में जो टी बैग लेते हो ना, कभी टी बैग को फाड़ के देखा करो, वो कुछ नहीं होता, वो डस्ट होता है।
उसमें ना एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा ना कुछ मिलने वाला है, जो आप सोच के टी बैग पी रहे हो। तो पॉइंट इज कि आप टी क्वालिटी, टी लीफ कौन सा यूज कर रहे हो। तो हमें बहुत श्योर थे कि हमारी टी में जो टी लीफ है इट वॉज ऑफ ए प्रीमियम क्वालिटी। एक तो सोर्सिंग में कॉन्फिडेंट था, प्लस हमें फीडबैक काफ़ी अच्छे आए थे। तो एक छोटा पायलट तो करना चाहिए। मैंने प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करने से पहले मैंने 6 महीने पायलट भी किया था, जो कि एक फॉर्म बना के किया था। प्राइवेट लिमिटेड मैंने बाद में कन्वर्ट किया है, जब मुझे लगा कि चलो ठीक है अभी चल जाएगा। तो एक छोटा पायलट अपने छोटे, आप छोटे स्केल पे करके देख लो, चाहे वो ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, लेकिन फीडबैक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन बोथ द थिंग्स, कि आप कैसे बेचोगे, पैकेजिंग कैसा होना चाहिए। कभी-कभी हम कस्टमर से सीख के भी पैकेजिंग चेंज करते हैं। जैसे हम लोगों ने कभी पहले पिकल्स 250 350 ग्राम्स में करते थे हम लोग। बाद में हमें फीडबैक आया यार बहुत जल्दी मतलब खत्म हो जाता है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो हम लोगों ने हाफ केजी में किया। तो ये कभी-कभी कंज्यूमर्स को लिसन या सुन के भी हमें अपने पैकेजिंग को चेंज करना होता है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर आप सेल अपनी बढ़ाओगे। तो पायलट इज समथिंग, पायलट और फीडबैक ये दोनों होना चाहिए साथ-साथ। आप पायलट करो छोटा-सा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा बिज़नेस चलेगा, नहीं चलेगा। सेकंड इज़ आप ये देखो कि क्या बिक रहा है ज़्यादा। 2 तरीके होते हैं, या तो आप कुछ नया इनोवेटिव लेके आओ, जो कोई भी कॉम्पिटिशन में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी लेके आओगे कॉम्पिटिटर हमेशा आता ही आता है। आज से आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, चारकोल बहुत ही पीक पे था। चारकोल सोप, चारकोल टूथपेस्ट, चारकोल फेस वॉश। आज इतना नहीं है, सैचुरेशन आ गया है। उसमें भी क्या हुआ, एक ब्रांड आए तो फिर 10 ब्रांड और आ गए, राइट? तो कॉम्पिटिशन तो हमेशा आएगा ही आएगा। लेकिन या तो आप कुछ नया लेके आओ, या फिर जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, अगर एक तरीका वो भी होता है, आप देखो क्या अच्छा जा रहा है मार्केट में, आप फिर वो लेके आओ, एक अच्छे प्राइस में, अच्छे क्वालिटी में। Right. I believe, Shubham, your question was answered. Next question we have is from Ronit. Sir, how to manage with funding? I'm having no savings and backup. So Ronit, can you unmute yourself? कहाँ से हो आप? Rohit, you can drop that in the chat box. So let me, let me tell this. There are many, state level government funding schemes. जैसे हर स्टेट में ना स्टार्टअप्स, जैसे स्टार्टअप उत्तराखंड में भी है, स्टार्टअप बिहार में भी है। तो दे गिव वेरी गुड फंडिंग इवन ऑन द आइडिएशन स्टेज। अगर आपके पास आइडिएशन स्टेज में हो आप, तो भी आपको फंड्स मिलते हैं। पॉइंट इज यू नीड टू अप्लाई, इट नीड टू बी गेट अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज, आपको फंड्स मिलते हैं। सेकेंड इज हमारी कैटेगरी में, जहाँ पे हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है, हमारे कैटेगरी में आइडिएशन स्टेज में नहीं मिलता। यहाँ पे यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि ये कोई हम कोई इनोवेशन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको एक ट्रैक्शन देना होता है, 5-6 महीने में आप परफॉर्म करो, आप अच्छा करो, और आप फिर इन्वेस्टर्स को पिच करो कि चलो हमें ये रिजल्ट, हमारा 6 महीने में ये रेवेन्यू आया है, तो यू कैन गेट सर्टेनली गेट गुड फंडिंग। इफ यू आर इनटू आईटी और टेक स्टार्टअप्स, और या फिर कुछ ऐसा इनोवेशन कर रहे हो, जैसे मैं अभी बिहार, स्टार्टअप बिहार गया था, वहाँ तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी दे रहे हैं, 10 लाख 20 लाख वहाँ देते हैं। तो दे आर वेरी वेरी एक्टिवली सपोर्टिंग द स्टार्टअप्स। तो आप गवर्नमेंट फंड्स का यूज करो। आई थिंक अभी बहुत एक्टिव है, मतलब स्टेट लेवल पे भी, हाँ ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक स्कीम है स्टार्टअप। आई थिंक यू नीड टू एक्सप्लोर दैट, आप वेबसाइट पे देखो। Okay, so the next question we have, it's from Jaya. Good afternoon, sir. It's so nice to see you here. I just want to understand what keeps you motivated to keep pushing forward even during the tough times. आई थिंक मनी मनी वाज समथिंग which kept me motivated. एक मनी तो होता ही है। सेकंड, आई थिंक खुद से का एक्सपेक्टेशन भी था कि अब मुझे ये करना है। रीजन वाज, शायद फर्स्ट बर्ड पहले बंद हो चुका होता कोविड में, और बीच में भी इनिशियल डेज में भी, क्योंकि इनिशियल डेज में इतना फंड्स था नहीं, मतलब बहुत ही कम कैपिटल से शुरू किया था। और एक एक्सपेक्टेशन होती है फैमिली की भी आपसे, लेकिन वो आई थिंक वो फेज मैंने पार किया। तो आई थिंक वो एक वो था कि मुझे करना है, मैं ऐसे बंद नहीं कर सकता। इफ आई स्टार्टेड समथिंग, उसका एक क्लोजर अच्छा करूँ, मतलब ये मैं उसमें क्लियर था। और ये मैंने अपने फैमिली से भी रिक्वेस्ट किया। तो आई बीन वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली। आई मीन माय मदर, फादर, वाइफ, एवरीवन हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। नहीं तो आई थिंक ये मैं कर ही नहीं पाता। तो आई थिंक मनी वाज फर्स्ट, सेकंड वाज सेल्फ मोटिवेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। All right, that was good. So, in the next question we have, it's from Mr. Devanshu. Sir, there are so many startups in today's time. How to make sure that our idea stands out?
तो दिवांशु, एज आई सेड, आप दो तीन तरीके से ही कर सकते हो। आप ये देखो, या तो आपके पास सोर्सिंग किस चीज की है, मतलब आप रिसोर्सफुल किस चीज में हो, या तो आपके पास पैसा होना चाहिए, या फिर यू हैव समथिंग गुड एट सोर्सिंग एट, जो आप बेच सको। वो कुछ भी हो सकता है, बी आइडिया, बी फिजिकल प्रोडक्ट, एनीथिंग। थर्ड इज यू ब्रिंग आउट समथिंग इनोवेटिव, जो आप मार्केट स्टडी करो। आप देखो व्हाइट स्पेस कहाँ पे है। देयर सर्टेन, अभी भी ऑनलाइन में देयर सर्टेन कैटेगरीज जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है। अभी आप देखो तो गवर्नमेंट इज पुशिंग सो मच ऑन टॉय कैटेगरी, क्योंकि चाइना को कॉम्पीट करना है। गवर्नमेंट खुद कह रही है हम सब्सिडी देंगे, आप टॉय में आओ। बहुत सारे अच्छे अच्छे, मतलब अब टॉय इज समथिंग यू कैन एक्सप्लोर। या फिर इफ यू आर इनटू समथिंग टेक रिलेटेड, तो आप ना ग्लोबल मार्केट को भी फॉलो करो। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग यूएस में भी देखते हैं, अमेजोन ग्लोबल भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या बिक रहा है, इंडिया में क्या नहीं है। तो देयर सर्टेन टूल्स ऑल्सो जो आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे हीलियम 10 इज अ वेरी गुड टूल। आप हीलियम 10 को एक्सप्लोर करो। अमेजोन के लिए खासकर बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम मिल जाते हैं कीवर्ड से, प्रोडक्ट क्या सेल किया है, कॉम्पिटिटर का क्या सेल है। तो यहाँ से आप थोड़ा एक आइडिया लेके अपना कुछ एक वाइट स्पेस बना सकते हो। आप देखो किस कैटेगरी में कितने कम कॉम्पिटिटर है। तो ये थोड़ा स्टडी तो आपको ऑनलाइन भी करना पड़ेगा इफ यू आर इनटू ऑनलाइन स्पेस। All right. So the next question that we have is from Tanya. So do you think this is a good time for students to explore entrepreneurship? I think yes, uh, because when you are a student, at least you have good access to something. That is, first is आपके और भी क्लासमेट्स होते हैं, यू कैन फॉर्म अ गुड टीम। द वेरी फर्स्ट थिंग, जो व्हेन यू स्टार्ट अप यू आर अ सोलो फाउंडर। तो जब आप कॉलेज में होते हो या फिर आप ग्रुप में होते हो, यू कैन फॉर्म अ स्मॉल टीम। सेकंड इज एक्सेस टू इंटरनेट, फ्री इंटरनेट एंड फ्री वर्किंग स्पेस। कॉलेज में देयर आर सर्टेन कॉलेजेस व्हिच एक्चुअली गिव इंक्यूबेशन सेंटर्स या फिर स्पेसेस टू एक्चुअली कैरी आउट द दिस थिंग, स्टार्टअप थिंग्स। तो वहाँ पे यू कैन फॉर्म ए स्मॉल टीम, यू हैव ए स्पेस फॉर सिटिंग डाउन, यू कैन ब्रेनस्टॉर्म, जो कि बाद में यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स अलोन। अगर आप खुद से स्टार्ट करोगे तो यू आर अ सोलो फाउंडर एंड जर्नी इज वेरी लोनली इन दैट केस। तो आई थिंक स्टार्ट करने का कोई फिक्स टाइम होता ही नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी आई मेट अ गाय पटना में, तो ही वाज अराउंड 13 इयर्स ओल्ड, आदित्य इज द नेम। एंड वो ना रात को न्यूज़पेपर बेचता है, और सुबह, अभी वो स्टार्टअप बिहार से भी रिकॉग्नाइज्ड है, और उसका एडटेक का स्टार्टअप है। तो कोई टाइम ही नहीं है, वो तो स्कूल, आई डोंट थिंक कॉलेज में भी, स्कूल में भी पढ़ता होगा अभी। तो कोई टाइम नहीं है, आप जब भी कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो। आप जॉब में भी करो, आप 40s में भी करो, 50s में भी करो। पॉइंट इज कि आपको अंदर से ग्रेट आना चाहिए कि चलो ठीक है, आई नीड टू स्टार्ट समथिंग। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जॉब इज बैड, एवरीथिंग इज गुड। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए। All right. So Himani has a question. Sir, did you have a mentor to guide? How can we find someone who can mentor us? I didn't have any mentor when I started up. I learned most of the things my own. I mean, be it listing on Amazon, sourcing, packaging, सब कुछ। मतलब मुझे फील हुआ कि मेरे ऊपर वो पीछे हाथ नहीं था कि बहुत इजी हो जाए मेरी जर्नी। लेकिन अभी आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं पीछे का देखता हूँ, आई कैन हेल्प एनीवन। जो मुझे 7 साल में लगा, आई थिंक आई कैन हेल्प एनीवन इन 1 or 2 years। तो अभी आई एम ऑल्सो मेंटरिंग 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम माई IIT पटना इन कंज्यूमर स्पेस ओनली। तो बीइंग ए मेंटर, आई थिंक बहुत सारे हेल्प मिलते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस में हेल्प मिलते हैं। क्योंकि हम लोग जिस स्पेस में, कनेक्शंस मैटर मोर, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आप करके सीखते हो। तो फाउंडर का जो एग्रेशन है, फाउंडर ही ला सकता है, लेकिन कनेक्शंस आपको हेल्प करते हैं आई थिंक टाइम सेव करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को क्विक कॉमर्स में जाना है, बहुत ही मुश्किल है ऑनबोर्डिंग, वहाँ पे आपको कनेक्शन चाहिए। अगर मुझे आज अमेजोन में लिस्ट करना है, जो टाइम मैंने 1 डेढ़ महीने लगाया, आई थिंक मैं किसी और का 1 दिन में करा सकता हूँ आज, बिकॉज टुडे आई हैव सर्टेन कनेक्शंस। So I think this is difference. Right mentor is very, very much important to give you a right direction and right path. I think this was something I missed in my journey. Komal has a question. So, so what advice do you have for students who want to start a business with little or no money? I think start slow. ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सब कुछ कर देना है, आप धीरे धीरे स्टार्ट करो विद अ वेरी स्मॉल, छोटा सा। आप जो भी करने का मन है, आपको चॉकलेट्स बेचने हैं, हैंडमेड कुछ भी करना है, स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल इन्वेंट्री। उसमें प्राइड फील करो, उसको लॉन्ग टर्म में लो। ऐसा मत सोचो कि कल ही सब कुछ हो जाए, 1 महीने में हो जाए। प्लान इट फॉर लॉन्ग टर्म। धीरे धीरे वो रेवेन्यू आएगा, धीरे धीरे आप उसको स्केल करो। क्योंकि शॉर्ट टर्म तो कुछ होता ही नहीं है, आपको बहुत ही प्यार से उसको स्केल करना है। तो पेशेंस इज, आई थिंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन यू हैव नो मनी, नो सपोर्ट, आई थिंक वो खुद के अंदर थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि यू कैन डू समथिंग। तो विद अ स्मॉल मनी ऑल्सो यू कैन स्टार्ट।
द पॉइंट इज कि आप उसको फिर हर जगह मत वेस्ट करो, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो आई वाज वेरी वेरी श्योर कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, बहुत कम है, तो मैंने 10 जगह नहीं किया, मैंने बस अमेजोन पे ही लिस्ट किया। मैंने उस वक्त अपना वेबसाइट भी नहीं किया एक शुरू के फर्स्ट ईयर, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं गया, जियो मार्ट पे भी नहीं गया, मुझे पता था मेरे पास इतना इन्वेंट्री नहीं है, मैं मतलब अगर हो भी जाएगा मैं सेल कैसे करूंगा, क्योंकि वो बहुत मेजर चैलेंज होता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैपिटल को देख के भी आप करो, उस बजट के हिसाब से करो। एंड इनिशियल डेज में तो आई थिंक आई यूज्ड टू मेक, मैंने खुद से इंस्टाग्राम पेज बनाया, मैं अमेज़न पे ऐड भी खुद से करता था, कंटेंट भी मैं खुद से लिखता था, कस्टमर सपोर्ट भी मैं ही था। तो आई थिंक इट ऑल चेंजेस, आई मीन यू हैव टू स्टार्ट एट सर्टेन स्पेस। Okay, we have a question from Anju. Are there any books, courses, or resources that helped you that you would recommend for beginners? Initially, actually, no, I didn't went through any books. I started with my self learning, but books, certain books I would like to recommend. The very, I mean, first book is The Power of Subconscious Mind. If you know anyone have you read it, please do read. It changes you. I mean, अभी जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो यू आर मोर इनटू मोर काइंड ऑफ थॉट्स, मंकी माइंड होता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, आपके खुद के इतने अफेयर्स भी होते हैं, आप उसमें भी बिजी होते हो, वो एक जगह स्टेबिलिटी नहीं होता। तो आई थिंक दैट इज इतना ज़्यादा, आई थिंक वो हमारे टाइम में शायद इतना नहीं था डेविएशन, क्योंकि इतने सारे टूल्स नहीं थे, व्हाट्सएप, चैट जीपीटी और स्नैपचैट, अभी तो सब कुछ है। तो आई थिंक वो फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो बुक पढ़ो, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा, क्योंकि जो ब्रेन में है वही आप करोगे, अगर आपके ब्रेन में क्लटर है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। All right. If anybody has any other question, feel free to drop that as quickly as you can because has a flight to catch. Let's just wait for 1 2 minutes, and if anybody is here. I think we have 15 minutes of time. No problem. Okay. Okay, I don't think the audience has any more questions. Everything is pretty much clear to everyone. Let me have one question. Fine. As I've told you, right, that like initially, everybody has that fear, that like fear of risk, like what will happen, what if it doesn't, it doesn't give us the profit and everything. So like, do you have some strategies in mind that like how to keep the calm, in that moment? Actually, initially, I was very much, what say, Yeah, you I used to also scroll, told that you were very short tempered. what I Yeah. used to do, I used to install my app, मतलब एक ऐप होता था अमेज़न का और वेबसाइट का, मैंने फ़ोन में इंस्टॉल किया, एंड एवरी 5 मिनट्स आई यूज्ड टू रिफ्रेश इट एंड सी माय सेल्स फिगर कि अभी कितना हुआ, अभी कितना हुआ, ऐसे रात के 12 बजे तक मैं ऐसे करता था व्हेन आई स्टार्टेड। और आई रियलाइज़ कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा हूँ उससे, क्योंकि थोड़ा भी आधे घंटे में अगर वो फिगर मूव नहीं कर रहा है तो मुझे टेंशन होता था कि क्या हुआ, और आज मैं नहीं देखता, मैं देखता भी नहीं हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे ना समथिंग मेडिटेशन हेल्प मी अ लॉट, आई मीन स्पेशली लास्ट 2 to 3 years. So I'm also into meditation and certain practices. So I think it helped me to be more calm, to be more decisive, good decision making and all. तो अभी मुझे I don't panic. I take my decisions जो मुझे लेना है, and what I think I do it. तो even I have realized कि मैंने जो भी सोचा, I think I have done that. So I'm very very happy that I have changed as a human. All right, all right. I'll keep that in mind. Yeah. So with this, I don't think the audience has any more questions. So let's just conclude. Yeah, this session. Yeah, we don't have any more questions. Fine. All right, so let me just wrap this up. So as we wrap up today's enlightening session, I want to extend our deepest gratitude to Mr. Mitresh Sharma for sharing his journey and expertise on building a Shark Tank funded company from scratch. Mr. Sharma, your candid insights into the entrepreneurial process,
from ideation to execution, have inspired us all to think big and work smarter towards our goals. The strategies you have shared today, grounded in your real world experiences, are invaluable for anyone aiming to create impactful and scalable businesses. To our amazing audience, thank you for your active participation and thoughtful questions. Your enthusiasm fuels the success of this series and makes these sessions incredibly rewarding. We hope you leave today with fresh perspectives and practical takeaways that will propel you towards your entrepreneurial dreams. So stay tuned for more such sessions in our 24 in 2024, the Changemakers of India series, where we continue to bring you closer to the pioneers shaping the future. Until then, keep innovating, keep striving, and keep making a difference. Have a wonderful day ahead, everyone. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.